बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, नमाज जुम्मा में आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत तिलावत फरमाते थे? जवाब, सूरह जुम्मा। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसको करने से खाने में बरकत नहीं होती? जवाब, गरम खाने में। सवाल, शैम्पू में कौन सी चीज़ मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर होती है? जवाब, एक चुटकी नमक और एक चुटकी फटकड़ी। सवाल, मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद का नाम क्या था? जवाब, मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद का नाम मस्जिद ज़रार है। सवाल, किन नमाजियों की नमाज उनके लिए तबाही है? जवाब, सूरह माउन में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर और रियाकारी करते हैं। सवाल, जमाही रोकने से क्या नुकसान हो सकता है? जवाब, दिमाग की रग फट जाती है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के 3 दिन बाद दरिया में बहा दिए गए। सवाल, किस आदमी के सामने कुरान पढ़ने से 10 लानतें मिलती हैं? जवाब, जिस शख्स ने किसी जालिम के सामने इसलिए कुरान पाक पढ़ा कि इससे कुछ माली फ़ायदा हो, इसको हर हुरूफ के बदले 10 लानतें मिलती हैं। सवाल, कुरान मजीद में लालची इंसान की मिसाल किस जानवर से दी गई है? जवाब, कुत्ते से। सवाल, दुनिया में मौजूद जन्नत का कौन सा फल है जिसको खाने से जहर असर नहीं करता? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा मौजूद है। सवाल, मैं नमाज पढ़ रहा था कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने नमाज तोड़कर दरवाज़ा खोला, अब मेरा कफ़ारा क्या होगा? जवाब, बिला किसी शदीद ज़रूरत के नमाज तोड़ना जायज़ नहीं है। अगर आपने किसी दस्तक देने की वजह से दरवाज़ा खोलने के लिए नमाज तोड़ दी, तो अगर शदीद ज़रूरत नहीं थी तो ऐसा करने की वजह से आप गुनाह के मर्तकब हुए हैं और आप पर इस गुनाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करना लाजिम है। अलबत्ता अलग से कोई कफ़ारा लाजिम नहीं है। सवाल, ग़ज़वा खैबर के मौके पर कितने मुसलमान मुजाहिदीन थे?
جواب غزوہ خیبر کے موقع پر 1600 مسلمان مجاہدین تھے۔ سوال، آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے پہلے اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب، سب سے پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا۔ سوال، نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ جواب، نماز کسوف میں اذان نہیں دیتے۔ سوال، کس انسان کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب، روزے دار کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی گئی تھی؟ جواب، جو کی فصل کاشت کی گئی۔ سوال، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ جواب، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ سوال، مکہ مکرمہ چھوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرمایا، تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ سوال، جنت البقیع کیا ہے؟ جواب، مدینہ میں قبرستان ہے۔ سوال، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال، عجم کے معنی کیا ہیں؟ جواب، عجم کے معنی گونگے ہیں۔ سوال، جنگ خیبر میں کتنے یہودی کام آئے؟ جواب، جنگ خیبر میں 93 یہودی کام آئے۔ سوال، کون سے نبی اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے؟ جواب، حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے۔ سوال، شیش لفظ کے معنی کیا ہیں؟ جواب، اللہ کا عطیہ۔ سوال، سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب، نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ سوال، واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب، واقعہ معراج کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔
سوال: آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: آیت کے لغوی معنی نشانی ہیں۔ سوال: قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ سوال: قرآن پاک کے دوسرے پارہ میں صرف ایک سورت ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے؟ کوئی استغفار کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ یہ کون سی بابرکت رات ہے؟ جواب: یہ بابرکت رات شب قدر ہے۔ سوال: فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ جواب: فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرے جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے، ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ سوال: جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اگایا؟ جواب: جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب: جہنم کی 7ویں منزل میں منافقین کو قید کیا جائے گا۔ سوال: کن لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، بخت نصر اور نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا کیے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا کیے۔ سوال: کون سی برائی اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: غرور اور تکبر اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال: زمین پر کون سی پاک جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔
سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں سبز رنگ کے علاوہ کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں سبز رنگ کے علاوہ سفید رنگ پسند تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کی جان لیتا ہے؟ جواب: مچھر ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل سب سے پہلے دنیا میں کھایا وہ کون سا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل سب سے پہلے دنیا میں کھایا وہ انگور تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں نماز ادا کی۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند کا نام بتائیے اور اس نے کل عمر کتنی پائی؟ جواب: آپ علیہ السلام کے فرزند کا نام انوش، کل عمر 905 برس پائی۔ سوال: سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ جواب: سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟
सवाल सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी बुत शकन के लक़ब से मशहूर हुए। सवाल कौन सी छोटी सूरत है जिसमें अब्राहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है? जवाब सूरह फील में अब्राहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है। सवाल 120 ऊँटों पर कितनी ज़कात लागू होती है? जवाब 120 ऊँटों पर एक बकरी की ज़कात लागू होती है। सवाल वो कौन से सहाबी हैं जिनको बिल्लियों का बाप कहा जाता है? जवाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल अब्राहा जिसने काबा पर चढ़ाई की कौन से मज़हब का पुरजोश हामी था? जवाब अब्राहा जिसने काबा पर चढ़ाई की ईसाईयत मज़हब का पुरजोश हामी था। सवाल एक ग़ुलाम के हाथ एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गुच्छे भिजवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किए। ग़ुलाम फ़ौरन बोल पड़ा, ये ऐसा कलाम है जो यहाँ के बाशिंदे नहीं बोला करते। ये वाक़या पढ़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा सफ़र आपके जहन में आता है? जवाब सफ़र ताइफ। सवाल क्या जिन्नात भी इबादत करते हैं? जवाब कुरान पाक की सूरह दारियात की आयत नंबर 51-56 में अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सवाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने किस चीज़ का साया किया था? जवाब बेलदार दरख्त का साया। सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को किस नमाज के वक्त शहीद किया गया? जवाब फजर की नमाज के वक्त। सवाल इल्म का शहर किस नबी को कहा जाता है? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ। अबू बकर इसका बुनियाद है, उस्मान इसकी छत है और अली इसका दरवाज़ा है। सवाल जन्नत में जन्नती किस शक्ल में दाखिल होंगे? जवाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी सूरत पर पैदा फरमाया। इनकी लंबाई 60-60 हाथ थी। तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और इसकी लंबाई 60 हाथ होगी। सवाल कुरान में आयात तस्बीह कितनी है? जवाब कुरान में आयात तस्बीह 100 है। सवाल शेखुल इस्लाम किस सहाबी को कहा जाता है?
जवाब शेखुल इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को कहा जाता है। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? जवाब, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किसने तलाक दी थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दी थी। सवाल, जन्नत का फल सबसे पहले कौन से नबी खाएंगे? जवाब, जन्नत का फल सबसे पहले हज़रत अब्बुल हदा रज़ी अल्लाह अन्हा खाएंगे। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह हलाक हुई थी? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बादल के कड़कने की आवाज़ से हलाक हुई थी। सवाल, मन सलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया? जवाब, मन सलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया। सवाल, हज्जाज कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं? जवाब, हज्जाज कराम ईद की नमाज अदा नहीं करते। सवाल, हज़रत जवेरिया का असल नाम क्या है? जवाब, हज़रत जवेरिया का असल नाम बरहा है। निकाह के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम जवेरिया रखा। सवाल, खाने काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? जवाब, खाने काबा का नक्शा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया। सवाल, मौत से इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है? जवाब, मौत की वजह से इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा टेढ़ा नहीं होता। सवाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या है? जवाब, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सखर। सवाल, कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करने चाहिए? जवाब, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने चाहिए। सवाल, कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने का कफारा क्या है? जवाब, कोई कफारा नहीं है। सवाल, हज अदा करते वक्त कोई गलती हो जाए तो क्या किया जाता है? जवाब, बकरा ज़िबा किया जाता है। सवाल, क़यामत से पहले अरबों में कौन सी बुराई पैदा हो जाएगी?
जवाब बुत परस्ती। सवाल आँख नाक कान और पित्ते का ऑपरेशन से मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब आँख नाक कान और पित्ते का ऑपरेशन से मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम अब्बुल कासिम ज़हरवी है। सवाल जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है इसे किस नाम से याद किया जाता है? जवाब जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है इसे मकाम इब्राहीम के नाम से याद किया जाता है। सवाल इस्लाम का पहला तीर चलाने वाले शख्स कौन थे? जवाब हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास इस्लाम का पहला तीर चलाने वाले थे। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस जिन ने सजदा करने से इनकार किया था? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इब्लीस ने इनकार किया था। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तलवार विरासत में मिली थी इसका नाम क्या था? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तलवार विरासत में मिली थी इसका नाम मातोड़ था। सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस दिन की तबलीग करते थे? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन हनीफ की तबलीग करते थे। सवाल हज के सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी अज़वाज मुतहरात थीं? जवाब हज के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 अज़वाज थीं। सवाल कुरान मजीद की किन सूरतों को कुरान मजीद का दरवाज़ा कहा जाता है? जवाब कुरान मजीद की हम सूरतों को कुरान मजीद का दरवाज़ा कहा जाता है। सवाल कुरान में किस वाहिद शख्स को कुनियत से मुखातिब किया गया है? जवाब कुरान में अबू लहब को कुनियत से मुखातिब किया गया है। सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से किन को कुरान मजीद हिफ्ज़ था? जवाब सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल खाने काबा का नक्शा किसने बनाया था? जवाब खाने काबा का नक्शा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। सवाल किस सहाबी को इस्लाम कबूल करने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मार पड़ा करती थी? जवाब सईद इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को, क्योंकि उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था।
सवाल हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे पैदा हुए? जवाब हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे पैदा हुए। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसकी रोटी बनाई? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गंदम काटने के बाद इसकी रोटी बनाई। सवाल, हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी करने से औरत सेहतमंद रहती है? जवाब, एक हफ्ते में 3 दिन हम बिस्तरी करने से इंसान सेहतमंद रहता है। सवाल अल्लाह ताला ने किताब इंजील को कौन सी ज़बान में नाजिल फरमाया? जवाब अल्लाह ताला ने किताब इंजील को इब्रानी ज़बान में नाजिल फरमाया। सवाल कुरान मजीद ने किस किस्से को एहसन अक्सस का नाम दिया है? जवाब कुरान मजीद ने किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एहसन अक्सस का नाम दिया है। सवाल वो अल्लाह के कौन से नबी हैं जिन्होंने आलम इस्लाम को 3 तबकों में तकसीम किया? जवाब अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस हैं जिन्होंने आलम इस्लाम को 3 तबकों में तकसीम किया, 1 काहन, 2 बादशाह, 3 रोयत। सवाल मदीना हिजरत करने वाले पहले सहाबी कौन थे? जवाब हज़रत अबू मुसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना हिजरत करने वाले पहले सहाबी थे। सवाल, जन्नती का कद कमोबेश कितने फीट का होगा? जवाब, जन्नती का कद 90 फीट का होगा। सवाल किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल, किस इंसान की नाराजगी अल्लाह ताला की नाराजगी में से है? जवाब, वालिद की नाराजगी में। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के बारे में फरमाया शैतान उनको देखकर अपना रास्ता बदल लेता है? जवाब, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को देखकर। सवाल, ईद के दिन काले कपड़े पहनना कैसा है? जवाब, ईद के दिन काले कपड़े पहनना जायज है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मशहूर सहाबी को सैयद का लक़ब अता फरमाया? जवाब, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो को।
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔